बड़े शशोपंज में था सत्संग करूं ना करूं, बिकॉज 95 in fact that was the year when Guruji had come to Delhi, and we, as he fondly used to call us, the class of 1995, class of 95. So उस टाइम गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए. So 25 साल टू द डे तक तो वादा निभाया गुरुजी, बट सॉरी, इट्स अ सेलिब्रेटरी टाइम के हमारे आज 25 साल पूरे हुए हैं आपके साथ 95 से लेके. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ फ्यू सत्संग्स with the rest of the sangat. Because of the quality time that we spent with you, even the small mundane tasks have become satsangs, because as everybody knows that Guruji never used to give any sermons. So whatever sangat, whatever satsangs are there are because what he did, उनकी करनी पे ही सारे सत्संग हैं. तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि अगर मेरे गुरुजी के सत्संग में कहीं मेरी मैं आ जाए तो मुझे माफ कर देना, बिकॉज करने वाले वही हैं, उन्हीं के सत्संग हैं. हम लोग सिर्फ हम लोगों ने किरदार ही अदा किया है. गुरुजी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट विच करी ते नाल ए भी कहते थे कि जदों कहते थे कि सत्संग कर, इस तरह सत्संग करी कि वट खोल दी. So I will just try to do that only, and I will keep it short to about 10-15 minutes, and probably I can do it if Guruji wants it that way, in the next 4, 5, 10, 15, 20 days, however many days it takes, because the experiences are really, there's a long list of it, but I will stick to just a few satsangs every day if that is okay with you guys. Best place to start, I guess the best place to start would be the very beginning, the start of the journey, the start of the odyssey, कि कैसे हम गुरुजी से जुड़े, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ा और आगे क्या क्या हुआ. तो वहां से शुरू करते हैं. 1995 मेरे को एक्चुअली बचपन से ही ना एस्थमा / ब्रोंकाइटिस के अटैक्स होते थे, और इन द ईयर 1995 अटैक इतना सिवियर था कि मुझे लगा कि मैं शायद रात को काट नहीं पाऊंगा, एंड आई विल डाई दैट नाइट. इट वाज सो बैड एन अटैक. somehow I survived, and the next day my paternal aunt, मेरी बुआ हमारे घर डे स्पेंड पे आई हुई थी. तो जब उन्होंने मेरे को उस हाल में देखा तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश दिल्ली में हैं. He has got curative powers. Why don't you give him a try? वर्ड यही था, why don't you give him a try? तो मरता क्या ना करता वाली बात थी. शाम को we went to Guruji, and believe you me, मैं आपको बोलूं कि जी मैंने उनको देखते ही रब मान लिया, भगवान मान लिया, गुरु मान लिया, तो ये सबसे बड़ा झूठ होएगा. जब मैंने उनको सबसे पहली बार देखा, the only thing that I could recall at that point of time was the villain from Shakal. It is because of his bald pate, उनके सर में बाल सफा थे, and he was wearing very brightly colored red chola. And before I could say anything, he said, let us try the ayah. Those very words that my Buaji had said in the morning, why don't you give him a try? So his words were, let us try the ayah, ab aja. And that is how the journey started. In those times, Guruji used to give us Amrit Prasad. What was the Amrit Prasad was कि किचन से ट्रे में स्टील के ग्लास में 10-12 जितने भी ट्रे में आ जाते थे, ग्लास भर के आते थे, और गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी. उसका बीच वाला पार्ट और 3 उंगलियां गुरुजी उस ग्लास में डुबोते थे, and then he would give that Amrit Prasad randomly as per his wish to whosoever he wanted. संगत ज्यादा नहीं होती थी, हम we were about 20-25 at that point of time, and on that very first day
Guruji must have given me over a period of a couple of hours about 4 or 5 glasses of those Amrit. It's been 25 years and counting. I have not had an attack ever since. I was on to corticosteroids और asthma के लिए मैं pump inhaler जिसे कहते हैं वो use करता था. आज 25 साल हो गए हैं. Guruji has literally taken that away from me. And since I am connected a little with the medical field, I know that you just cannot wish it away because asthma or bronchitis is a form of allergy. I mean, you can only suppress it to a certain level, but at least you should get an attack twice a year when the season changes. But सिर्फ एक गुरुजी हैं जो एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एलर्जी, उसको ठीक किया उन्होंने. अब बात आती है अमृत पे. अब शुरू में जब आपको मैंने बताया कि भी हम जब गए गुरुजी के पास तो दिमाग शुरू से ही पुट्ठा सिगा और गुरुजी हमेशा मैंने कहते थे कि प्यार नाल कंजरा ते कंजर वाला ही दिमाग सिगा, कंजरा वाली हरकतां सिगियां. To make matters worse, Guruji used to say, मैं शिव दा प्यो हाँ. वो कमले ने तो विआह कराया, आपा तो वो भी नहीं कराया. माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है. जब ये पहली बार गुरुजी के मुंह से सुना तो मेरी हालत तो बड़ी टाइट थी. मैंने कहा ये तो पहुंचे हुए हैं, शिव को पता चलेगा कि भाई मेरे जैसा, मतलब हम हिंदुओं के लिए देवादिदेव महादेव से बढ़ के कौन है, कि भाई मेरे बारे में ऐसी बात सुन ली कि कमला बोल दिया शिव को, और किसी को नहीं, वो भी शिव को कमला बोल दिया, तो मुझे तो वो दल देंगे शिव कि मैंने सुन कैसे लिए, तो पहुंचे हुए निकल जाएंगे. बट एनीवेज दिमाग में यही आना कि कोई नहीं, मना तो ठीक होना है. वो कंजरों वाली हरकतें जो होती हैं, एक कान से सुन और दूसरे निकाल दे. अब उन दिनों गुरुजी ने कभी किसी को कहना चल खड़े होके तू इन्हों सुना, अपना सत्संग सुना, तो आई यूज्ड टू थिंक यार व्हाट इज ऑल दिस. आई मीन ये तो जैसे कहते हैं ना कि भाड़े के टट्टू जैसे कहते हैं कि भाई ये अपने आप को ना पॉपुलराइज करने के लिए कि भाई लोग इनके बारे में सुने और लोगों को बुला के लाएं, ये इसलिए कर रहे हैं. और फिर दिमाग में ही आना कि कोई नहीं यार तो ठीक होना है ना, तेनों की फर्क पैंदा. एनीवे जब अमृत प्रसाद हम गुरुजी के वहां जाने के बाद कशिश ऐसी थी कि at that point of time Guruji was accessible 24/7 365. You could walk in any time of the day or night. There were times when say for example if we were going to a function somewhere in South Delhi and we got delayed, we would on the way back, be it 1 o'clock 2 o'clock, would just drop in the mandir, and there he would always be welcoming all of us with open arms. So as I was telling you, what went into that jal to make it Amrit. There was this friend of Guruji from college by the name of Vimal Kapoor uncle. तो अब वहाँ गुरुजी के पास जाने की कशिश ऐसी होती थी that कम रेन और शाइन हम रोज गुरुजी के पास पहुंचे होते थे. उन दिनों कुछ दिनों बाद मतलब ये विमल कपूर अंकल भी आए हुए थे फ्रॉम चंडीगढ़. सो वी जस्ट गॉट टॉकिंग थिंकिंग दैट सिंस ही वाज अ चाइल्ड, आई मीन अ कॉलेज फ्रेंड ऑफ गुरुजी, सो वी जस्ट गॉट टॉकिंग एंड ही आस्क्ड मी, वरुण तेनू पता है कि गुरुजी है ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? So I just said कि because भाई हमें कोई ना कोई जवाब देना जरूर होता है हमेशा ही हम सो कॉल्ड अक्लमंदों को. मैंने कहा स्टील शुद्ध होता है इसलिए. तो कहते हैं नहीं, शुद्ध वाली कोई बात नहीं है. जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस जल में होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उंगलियों पे होते हैं, तब जाके वो जल अमृत बनता है. Come off it man, give me a break. I mean बहुत कुछ कनार्ड सुने हुए थे लेकिन ये सारी चीजें यकीन नहीं हो रही थी. ये क्यों नहीं हो पा रही थी? बिकॉज वी बीन ब्रॉट अप दिस वे दैट बचपन से वी आर टोल्ड के यार भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते. तो अब जिस तरह गुरुजी हमेशा कहते थे कि
कि तुसी ज्यादा पढ़ लिख गए हो, अपना थोड़ा दिमाग खराब हो गया है. एंड सो वेरी ट्रू. हमने इसकी करोलरी बना दी कि भगवान होते हैं, नजर नहीं आते, तो जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते. So with this handicap, or shall I say a mental block, we went to Guruji, and that is why I always claim that the new Sangat, the ones that got attached to him after he left his chola, can take him as God from day one. They are more attached to him. I, for one, forget God. It took me years to take him as a guru as well. I mean, that's how I was. Why should I lie? I mean, if somebody comes across, some old Sangat tells you that they always knew that Guruji is Shiv, well, I would say very doubtful, because none of us could see through that, guys. We could never make out that he was Shiv. Anyways, so just a couple of more satsang, and then probably I'll round off for the day, and then if you guys permit, maybe tomorrow I will come up with some other ones as well. So actually I have, you see, there are so many of them. I have just made some bullet points in my diary which I am referring to, and believe me, those bullet points itself have taken up more than tens of pages, so I would be around for quite some time, it seems. Okay, so yeah, one thing that Guruji always used to say was, and this incidentally, I was listening to somebody's satsang a couple of weeks back, somebody's old satsang from his Jalandhar days, much before we basically joined the fold, in which he spoke about Guruji saying, "Murkho ke hum das," and so very true. He always used to say that, and it is so beautifully and aptly said. Why did he say that? Is because, you see, Guruji हमेशा कहते थे कि जोड़ियां नाल अपना दिमाग भी बाहर छाड़ के आया कर, and जिसका दिमाग नहीं होता उसको in our parlance हम मूर्ख ही कहेंगे ना. So Guruji wants us, for complete surrender to happen, he has told us all to keep our if and but, the thinking brain, जो दिमाग होता है वो बाहर चढ़ के आना है. So that is what it was, and somehow it brought back very, very old memories. And secondly, just as a parting shot, I would like to tell you, we all, me included, miss going to the Bada Mandir these days because of the lockdown and the COVID situation. Well, I would just like to take you back to the year 2002 or probably 2003. Actually, with age, my memory is also failing a bit. But anyways, we had this bird flu, or probably the SARS at that point of time. Then again, I'm not too sure, but I know for a fact that it was something to do with either of the two. तो गुरुजी के जिस तरह एक नॉर्म होता है रादर, कि हम लोग जाते हैं, सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेकते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें होती हैं. बट in that almost 2 weeks of that particular year, when this particular thing was at its peak or almost at its peak, Guruji never let anybody touch his feet. मतलब जिस तरह होता था ना कि भी हम सब ने जाना और मत्था टेकने के लिए गुरुजी के चरण को छूना, तो गुरुजी ने किसी को भी संगत में वो अलाउ नहीं किया for the next 2 weeks or so. It was as if he was practicing social distance at that point of time, so that he could take care of the problem, the disease. So we should take this as another example that probably the reason why he is not calling us to the mandir right now is that he is taking away this particular disease, and he will call us all once it is over. So I guess that was it for the day. For tomorrow, I will tell you about his Das Dwap, and
तीसरी आंख, where he showed us his 10 द्वार and तीसरी आंख. चलो, just as a trailer, so to say, I will tell you about the 10 द्वार. See, there were times when Guruji, out of his own he would take a few sangat back into the treatment room. He used to call it a treatment room. That was in GK Mandir, जहाँ पे ना वो Guruji used to at times treat people with pan ke patte. He used to call for pan ke patte. He used to place them, and then he used to have a spoon with him, which he would probably touch at those points with that and cure people of it. And there were times when he would, like, there was just 4 of us, and on that particular day, me, my wife, my mother and my mother-in-law, so Guruji ne, and my father, of course, 5 of us rather. Guruji took us to that back room and he said, आओ तो मैं अपने 10 द्वार दिखाना वहाँ. Now, for the uninitiated, हम सब के बॉडी में 10 द्वार होते हैं. इसमें मल मूत्र सुसु पोटी वाले भी 2 द्वार होते हैं. So Guruji lay down prostrate on the floor of on the carpet in that particular room, and then he made us smell all these 10 द्वार्स, जो सर के ऊपर, आंखें, nose, all these 10 द्वार्स. And we could, as you all know, that Guruji has this very distinct fragrance about him, and at these 10 points you could really get whiffs of that fragrance. I mean, जैसे कहते हैं ना कि बहुत उमड़ के इन 10 जगह से वो गुरुजी की महक आनी, खुशबू आनी. And this was a sign that these 10 द्वार, ये 10 द्वार खुले हुए हैं. There is no barrier in between to block what is inside of him. गुरुजी कहते थे कि बाबे दे टाई ते साईं दे 2 द्वार खुले सी, मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने. ते गुरुजी ने और कहना कि मेरे दोनों पांव में चक्कर है, कृष्ण भगवान दे एक पांव में चक्कर सी. Now we all know for a fact that 10 द्वार सिर्फ निरंकार के खुले होते हैं. What does 10 द्वार खुले signify? I mean, even if I were to basically define a line, I need 2 finite points to define a line. That is the mathematical way of going about it. एक कहावत है भगवान के बारे में, खासकर शिव जी के बारे में, तेरा अंत ना जाने कोई. तो जिसका एक भी सिरा नहीं पकड़ में आ सकता, तो दूसरे की तो बात छोड़ो. मतलब एक सिरा पकड़ में आए तो आप सोचो कि चलो दूसरा सिरा भी पकड़ लें तो वो डिफाइन हो जाएगा बीच में दोनों सिरों में. पर इनका तो कोई सिरा ही नहीं है. मतलब he is omnipresent, omnipotent, he can take up any form or be formless. Just to build on to this, I will be telling you a lot many satsang which would tell you about him being omnipresent. I mean, being present at more than one place at the same time. But I guess that is there for tomorrow. जय गुरु जी. दूसरा अध्याय शुरू करते हैं जी. गुरु जी के पास जाना तो शुरू हो गया 95 में, और ये भी कल मैंने आपको बताया कि कशिश ऐसी थी गुरु जी की कि हम रोज ही दिल करता था कि उनके पास जाएं, और जाया भी करते थे. संगत कम हुआ करती थी वहां पे, और जैसे कि आप लोगों ने ग्रेटर कैलाश का मंदिर देखा होगा, तो घुसते ही राइट साइड में झूला है. झूले के साइड में ही ना ऐसा कोई जोड़ा घर नाम की चीज नहीं होती थी, पर सब जोड़े वहीं उतारते थे. तो बेसिकली अब वहां पे इतनी देर बैठे रहना, कई बार गुरुजी ने उठ के किसी के साथ चले जाना, तो वहां पे जोड़े घर के पास ही मैंने अपनी जगह बना ली थी एक तरीके से, कि भाई जस्ट टू बेसिकली गाइड पीपल वेयर टू टेक ऑफ द शूज एंड स्टफ. उन दिनों क्या शुरू से ही आप सबने देखा होगा कि गुरुजी कई बार अपना चखा हुआ जल प्रसाद या चाय प्रसाद किसी भक्त को दे देते थे. तो ये सारी चीजें हम देखा करते थे. और एक दिन वहीं पे मैं जोड़े घर में ही सोच रहा था कि काश
गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी दे दें। मेरे को हमें 2-3 महीने हो गए थे जाते हुए गुरुजी के पास, और दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। और फिर जैसे अपने आप को सांत्वना देने के लिए मैंने कहा नहीं, गुरुजी ते वड्डियां दे गुरु है, साडी थोड़ा इन्नी किस्मत। वड्डियां दे गुरु दा मतलब ऐ सीगा, हालांकि संगत कम होती थी वहां, 20 से 25 जने ही होते थे, पर उसके अंदर there were these some of the faces that you could make out as the page 3 celebrities, the Tata Birla in our lingo, मतलब हम उन्हें समझो पहुंचे हुए या पॉपुलर पीपल सो टू से। मैं हिंदी में ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं ट्राई किया था कि हिंदी में ही करूं। आई जस्ट सॉरी, मैं बस निकल ही जाता हूं इंग्लिश की तरफ। तो पहुंचे हुए लोग, आई मीन जो अपनी व्हाट डू यू से, एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। तो दिमाग में यही आया कि काश गुरुजी मुझे भी ये प्रसाद दे दें, और फिर अपने आप को ही मैं सांत्वना देते हुए बोला कि नहीं, साड़ी थोड़ा इन्नी किस्मत, गुरुजी ते वड्डियां दे गुरु हैगे। ते मैं ऐ सोच के भुल गया कि भी कुछ लग गया अपने कम ते। 5 मिनटा बाद एक अंकल आए, कहते ने कि वरन गुरुजी तेनू सद रहे ने, तुझे बुला रहे हैं। और मैं अंदर गया तो गुरुजी हैड दिस चाय का ग्लास उनके हाथ में था, चाय प्रसाद का। उन्होंने एक सिप लिया और बड़े विद द बेस्ट इन द क्यूटेस्ट ऑफ स्माइल ही हैंडेड ओवर मेरे को ग्लास दिया और कहा, एले ऐश कर। सो आई सेड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, जैसे मैंने कल बताया था कि कंजर तो शुरू से ही रहे हैं हम। तो मन में आया कि यार कमाल है, आज तक कुछ और मंगना सी, मतलब जो बोला वो बात पूरी हो गई, आज तक कुछ और मंगना सी है सोच रहा सीगा मैं। एनीवेज उस दिन जब हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने मुझे क्या कह रहा सीगा, साड़ी थोड़ा इन्नी किस्मत वड्डियां दा गुरु। मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं कहा, ना तू यही कह रहा सीगा, टाटा बिरला दा गुरु आ। So I was taken aback. I said, यार how could this be? It's so uncanny. I mean, कैसे हो सकता है? ये तो मैंने किसी से बात भी नहीं की, अभी तो मैं सोच ही रहा था बाहर, और इनको उसका भी पता है कि मैं सोच रहा था। So I was taken aback. मैं थोड़ा सकपका सा गया। तो गुरुजी कहते ने, तू की सोचदा है कंजरा, तेरे जे टाटा बिरला है मेरे कोलों कुछ लैके जा सकते ने? मेरे कोलों कख नहीं लैके जा सकते। इन्हां नूं ते शाप मिलिया होया, इन्हां दी नस्ल नहीं वधनी। This is what he told to me. And true in the sense that the Tatas, they don't have any offspring. There are so many Birlas जिनकी मतलब आगे नस्ल बंद हो चुकी है। So anyways, then he said, like he told me कि भी तू की सोचता है कि तेरे टाटा बिरला मेरे को कुछ लेके जा सकते हैं, कख नहीं लेके जा सकते ने, भावे 100 साल जोड़े किसलन। मीनिंग के मेरे पास जितनी मर्जी भी बार आते रहे, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मैं इन्हें कुछ नहीं दूंगा। गुरुजी कहते ने, मैं करोड़ा वोल्ट का करंट हाँ, तुसी 0 वोल्ट दे बल्ब हैगे हो। मैं ते अपने आप नूं मध्यम करके आना तुहाडे विचकार, तुसी मैनूं मेरी ग्लोरी विच वेख लो ते भस्म हो जाओ। गल तां बनदी है जदों मैं तुहानूं टच करां, तुसी मैनूं टच करो ते कख नहीं हो सकता। So I could relate to this fact because the so-called, I mean, फिर इंग्लिश छोड़ के हिंदी, मैं इसके साथ रिलेट कर सकता था बिकॉज ये देखते थे हम कि जो भी ये सो कॉल्ड, मेरी भाषा में जो टाटा बिरला मतलब बड़े लोग जिसे मैं कह रहा था, वो आते थे और वो सीधे ही गुरुजी के चरण दबाना शुरू कर देते थे। जबकि गुरुजी जब किसी को ये सेवा देते थे खुद बोल के, तो घंटों ही नहीं कई दिन तक उनके हाथों से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रहती थी। That was his way of basically giving them blessing. So गुरुजी कहते ने, वरन तेनू कुछ मेरे दर तो चाहिए तो 3 चीज़ां करनी पैनी है। This was way back in 95. I said, गुरुजी किहड़ी 3 चीज़ां? He said, सब तो पहले मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। मैंने गुरुजी कनेक्शन? कहते आहो कनेक्शन। सो कनेक्शन, मैंने कहा ये कनेक्शन क्या होता है? तो गैस गूस वाली कनेक्शन सुने, तो ये कनेक्शन क्या? मैं गुरुजी ओ किवें जोड़ी है? गुरुजी कहते ने, नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते ईगो छड़नी पैंदी है, मैं छड़नी पैंदी है। मैं गुरुजी ओ किवें छड़िए? गुरुजी कहते ने, नंबर 3 मंगना छड़ दो, मैं आपे छुड़ जानी है। तो मैं क्या मना मंगनी पे आया इत्थे,
और इत्थे आके भी नहीं मंगिया तो फिर आन दा सरोकार कीएगा. So in these 3 lines he summed it all up, and believe me, I mean, यकीन माने मेरा, इन 3 लाइनों में उन्होंने पूरा सार बता दिया. और जिस तरह गुरुजी, आप सबको पता है, गुरुजी बोलते थे मन्नन ते मंगन विच फर्क समझो, मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पड़ेगी. सो ट्रू टू हिज वर्ड्स, क्या होता है मांगने से? मांगने वाली चीज ना कैन नेवर बी योर्स. जो भी आप, वो आपको लौटानी ही होती है. जो भी चीज मांगते हो, चाहे आप किसी से 100 रुपए का नोट भी मांगो, उधार लो, उसको आपको लौटाना ही पड़ता है. वो आपका कभी नहीं हो सकता. लेकिन जो आपको गुरु या रब दान में देता है, दैट इज योर्स फॉर कीप्स. मतलब वो आप ही का हो जाता है, वो लौटाने की नौबत नहीं आती. और दूसरा, आप मांग के अपनी ही बात छोटी कर रहे हो. क्या पता उस भगवान ने, उस गुरु ने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना है. और अगर आप मांगोगे भी तो जमीन कितनी मांगोगे? जहां तक आपकी नजर जाती है. तो अपनी मांग छोटी करोगे. एंड सेकेंडली, there was this one time, Guruji, as you all know, he was well versed in so many languages. There was, I still, this is just an offshoot, मतलब ये थोड़ा हट के एक है कि सत्संग के एक बार एक सरदार जी अफगानिस्तान से आए हुए थे और उनके साथ ना कुछ लोकल अफगानी 2-3 लोग थे. तो ही वॉज ट्राइंग टू इंटरप्रेट. जब मिलवा रहे थे गुरुजी को, तो गुरुजी के साथ ना ही वॉज ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं. बिकॉज वो जो उनके साथ आए हुए थे, उनको हिंदी पंजाबी वगैरह नहीं आती थी. तो वो अपनी लोकल पश्तो लैंग्वेज, आई बिलीव, थी, उसी में बात कर रहे थे. तो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने सरदार जी को हाथ देके चुप कराया और उन लोगों से 1 to 1 उन्हीं की लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करने लग गए. सो बात घूम फिर के आ रही थी कि कहाँ था मैं? हाँ, मांगने पे बात आ रही थी कि मांग के हम अपनी बात छोटी ही करते हैं. There was this time when he said in impeccable English, Varun, I give what you need, not what you want. There is a perceptible difference between needs and wants. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. आज तेनू वड्डी गड्डी चाहिए है, कल तेनू हवाई जहाज चाहिए होएगा, उसके बाद तू रॉकेट का मंगेगा. मैं तो यह वेखना है, मैनू पता है तेनू अज वड्डी गड्डी दे देती, तेरा एक्सीडेंट लिखिया कल, वो वड्डी गड्डी तेरे एक्सीडेंट का कारण बनती है. तो मैंने मेरे उत्ते छड्ड दे, मैनू पता है कि मैं तेनू की चीज कदों देनी है. कि तुहाडी ते मेरी गिनती नहीं मैच करती. मैं सब तो पहला जिंदगी देना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सेहत देना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ पैसा ਲੱਤਾ देना वा. ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, सेहत ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. So that is how it was with him. So coming back to the Jodaghar thing, I had some very unusual satsangs about this. I mean, मैं ना वाकई कई बार तो ऐसी उद्दंडता कर लेता था कि जैसे कोई अकल से पैदल हो वाली बात है. एक बार मैं वहीं सो कॉल्ड जोड़ाघर में खड़ा था, तो there were these 2-3 I believe 2 IAS ladies who had just started coming, and वो अपने जोड़ा लेने आई थी. So I could hear them talking. One of them said, you know what, there is something sinister going on over here. हिंदी में बताता हूँ कि एक कह रही थी दूसरे को, यहाँ कुछ अजीब बात होती है. दूसरी कहती है, why do you say so? क्यों तो ऐसा क्यों बोल रही है? So she said कि I don't know, वो जब गुरुजी अमृत प्रसाद देते हैं ना, उसके बाद you tend to feel so nice. दूसरी कहती हाँ, आई थिंक ही मिक्सेस सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड या प्रेडनिसोलोन मिला के वो देते हैं, दैट इज हाउ यू फील सो नाइस. तो दूसरी कहती है, डू यू नो व्हाट, आई थिंक ही इज अ तांत्रिक. सो आई वाज लिसनिंग टू ऑल दिस एंड लाइक आई टोल्ड यू, द फूल दैट आई एम, जब उस दिन गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे तो मैं अंदर जाके मैंने, गुरुजी लोकी कहते ने कि तुसी तांत्रिक हो. तो गुरुजी विद अ स्माइल ही सेड, ना कमले, तांत्रिक किसी का भला नहीं कर सकते.
ते तांत्रिक ने गोरे चिट्टे नहीं होंगे. So instead of saying कि how dare you and तूने इस तरीके की बात क्यों की, he would basically come down to my low IQ level and tell me what it was. Because he also knew कि भाई भोले भाव ही पूछी गई थी ये बात, कोई दिमाग में ulterior motive नहीं था. It is just that I had heard this and out of my fear only that I asked him. So that was this. And then when we started going to him, मैं अपनी right hand में ना एक पुखराज पहनता था set in gold. So in the very first few days only he said कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਨ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਮਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ. Now I come from a very humble background at that point of time and I was always cash strapped, and believe me, महंगी चीज for me gold के अंदर और वो भी पुखराज, with a very heavy heart I threw that away. But he always used to say कि नगों के चक्कर में मत रहना कुछ. मतलब he always used to tell people to take off all these the stones, the sapphires and the, मतलब जो बताते हैं पंडित के ये इतने रत्ती का ये वाला नग पहन लो, वो गुरुजी ये सारी चीजें उतरवाते थे. मतलब ये नहीं कहते थे कि पहनो. कुड बी जस्ट स्पेक्युलेटिंग कि भाई जब गुरुजी के आपके सर पे वो हाथ फेरते हैं तो आपकी सारी राशियां बदल देते हैं. बिकॉज सारे तो गुरुजी के आदेश पे ही चलते हैं, चाहे वो शनि जी हो चाहे मंगल जी हो. बिकॉज once this is also very funny, there were so many funny satsangs that we had with Guruji because we felt good going to him. मतलब वहाँ जाके हंसी ठट्ठा होना, और हमें we were young, हम उस टाइम young थे. I mean what, if I would have been say about in my 20s. So it was never heavy. कभी ऐसा नहीं था कि भी धुनी रमा के वहाँ बैठ जाना और मेडिटेट करना. मतलब हमेशा ना वहाँ हंसी ठट्ठा और मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि charged up and always laughter and stuff. So ये सारी चीजें उन दिनों हुआ करती थी. तो अब नग के बारे में मैंने आपको बताया कि भी मना करते थे. नेक्स्ट है ये पर्टिकुलर सत्संग, दिस इज वेरी क्लोज टू मी. एंड इनफैक्ट ये सत्संग ना गुरुजी हमेशा मुझे जब भी बोलते थे ना संगत में खड़े होके बोलने के लिए, तो कहते थे कि ओ सुनाई, टेलीफोन वाला जरूर सुनाई. सो दिस इज हाउ इट गोज. 95 के अंदर ही ना MTNL का जमाना था. बिकॉज मोबाइल फोन्स आई रियली डोंट नो, अगर होते भी थे तो शायद कॉमन नहीं रहे होंगे, और प्रोबब्ली वी कुडंट अफोर्ड और व्हाटएवर द रीजन माइट हैव बीन. तो घर में हमारा नया नंबर लगा और नंबर मिला 242100. सो जैसे आपको बताया कि गुरुजी के पास हमने रोज जाना, तो शाम को जब गए तो गुरुजी ने कहा वरन तेरा फोन लग गया. मैंने हाँ जी गुरुजी लग गया. की नंबर मिल गया तेनू? तो मैंने कहा गुरुजी 242100. चौड़े होकर बोला 1000 साउंड्स गुड, इट्स लाइक अ वीआईपी नंबर. मतलब अच्छा लगा बोलते हुए. तो गुरुजी हैड द स्मॉल ब्लैक डायरी जिसके अंदर ना वो नंबर्स वगैरह लिखते थे, फोन नंबर्स कई बार. सो जस्ट टुक इट आउट एंड ही रोट वरन. मेरे को वरुण नहीं बोलते थे कभी, वरन ही बोलते थे. वरन 2421155. मैंने गुरुजी आनी 1000. गुरुजी कहते जो लिख देता हो गया. तो मैं क्या यार मना लोकां नूं कहंदे ने ईगो छड्डो, खुद इन्हां विच इन्नी भरी हुई है, मैनू की दसणगे यार, मैनू तो पता मैनू नंबर की मिल गया. भी तुसीं नहीं सुनिया, फिर जदों मैं तुहानूं टोक रहा ते तुसीं कट के लिख दो, तुहाडा की जाना. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं आ गई कि जी जो बोल देता हो गया. इस तरह थोड़ा होता है. I सोच रहा, I was just thinking about it and then I said, as I told you yesterday also, कि मना तू तो ठीक होना है ना, एक गाना सुन ते दूसरे गाना काट दे. And that was the end of it. The next day or probably 2 days after that, उसके मेरे को ना exchange से फोन आया कि जी हमने आपको जो नंबर नॉर्मली क्या एक्सचेंज इंजीनियर के ना घर के रेजिडेंस का ये नंबर रिजर्व रखते हैं. 1 ट्रिपल मतलब 242 वाज द एक्सचेंज और जो
000 जो है ना, उसके घर के लिए रिजर्व रखते हैं, ये आपको गलती से हमने दे दिया, तो ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस टाइम पे मैंने बड़ा उनको अपनी तरफ से कोशिश की कि यही रिटेन हो जाए, कई बहाने बनाए, लेकिन मेरी एक नहीं चली। उसके 2 दिन बाद मेरे को फोन आया कि जी आपको नंबर अलॉट हुआ है 2421155। तो मैं तो बड़ा झेप गया हुआ उस दिन। गुरुजी के पास पहुंचा था, गुरुजी कहते थे वरन तेरा नंबर ठीक हो गया। मैंने कहा गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं की सोच बैठ सका उस दिन। सो दैट इज हाउ गुरुजी इज एंड हाउ ही हैज ऑलवेज बीन। आई मीन जानी जान है, सब कुछ वही करते ने। एंड ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ not taken him as God. I really don't have a clue. I really wish I had a clue. Probably इनकी माया थी कि हमारे आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, पर हम कभी भी उनको रब नहीं मान पाए जब तक वो। गुरु जी हमेशा कहते थे कि हार्ड मारदा शरीर वेख के लोकी मनुष्य जान लेंदे। He was telling this to us only, and we were doing exactly what he was saying. हार्ड मारदा शरीर मतलब हड्डी और मांस का शरीर जो एक ह्यूमन बीइंग का होता है, ये देखते हैं मुझ में लोग तो मुझे एक मनुष्य ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही समझ लेते हैं। ये बोला करते थे और वो ही हमने समझा। एनीवेज ये था टेलीफोन नंबर का सत्संग। और हाँ, they were, as I told you, times were not very good in the sense that I was always hard pressed for cash, and I still remember I had a Citibank credit card at that point of time. उस टाइम मेरे पास एक Citibank का क्रेडिट कार्ड होता था जिसकी 3100 हाँ 3100 रुपए लिमिट हुआ करती थी। तो गुरुजी के पास जब जाते हुए हमें 3-4-5 महीने हो गए, तो एक दिन संडे का दिन था, शाम को गुरुजी कहते हैं कि वरन जब थोड़ी अगरबत्तियां तो फड़ ला। So I was so happy कि गुरुजी ने पहली बार मुझे कोई काम बोला है। सो जीके में ही ना मार्केट के अंदर देयर इज अ स्टोर कॉल्ड मॉर्निंग स्टोर। उन दिनों मॉल का जमाना नहीं था, पर मॉर्निंग स्टोर ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी जरूरत की चीजें मिल जाती थी। तो वहां गया तो सस्ते जमाने थे 95 में। अगरबत्ती के ना 2 कार्टन मतलब कार्टन लिया। तो मैंने पहले पता कराया कि भाई रिटर्न ट्रायल से कि भाई इसके अंदर मेरे कितने पैसे होंगे, बिकॉज मैं हमेशा ना 3100 में रिवॉल्विंग क्रेडिट ही यूज कर रहा होता था। मतलब कभी भी पूरा ना देके, वो कहते हैं मिनिमम 5% दे के काम चला रहे होते थे। तो इट वाज अ लकी मंथ फॉर मी इन द सेंस मैं कहा 2400 या 2500, नॉट वेरी श्योर व्हाट इट वाज, बट समवेयर इन दिस रेंज ओनली उसके अंदर अवेलेबल थे। और टू कट इट शॉर्ट 2 कार्टन छोटे कार्टन ना अगरबत्तियों के आ गए उसमें। तो मैं जब लेके गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते थे एने बड़े मतलब एने इतनी ज्यादा चीज ले आया तो चल कल्याण हो गया। सो आई वाज आल्सो हैप्पी दैट ही सेड कल्याण हो गया। एंड दैट कल्याण क्या हुआ उसका मैं बताता हूँ कि जहाँ पे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी 3100 लिमिट थी, उसके साल के अंदर अंदर शायद आई हैड अबाउट 5 कार्ड्स जिसमें 2 की लिमिट ही नहीं थी, मतलब अनलिमिटेड थे, और बाकी की भी बहुत ज्यादा थी। मतलब इट वाज एज इफ ही ब्लेस्ड माय कार्ड्स टू। तो अब आप कहोगे यार सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आता है कि हर चीज में गुरु की बटियाई, पर आई नो फॉर अ फैक्ट ही डिड इट, ही कैन डू एनीथिंग। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि 10 द्वार जिसके खुले हों वो रब कुछ भी कर सकता है। गुरुजी ही वंस आल्सो सेड कि वरन आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। So, but I took it कि भी he probably says this from a point of view of a सिद्ध पुरुष, कि भी सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धियां हासिल की हुई हैं इन्होंने, इसलिए बोल पा रहे हैं। पर रब नहीं, कभी भी दिमाग में नहीं आया। Anyways, just a couple of things I want to share with you, and yes, as I told you yesterday about तीसरी आंख, Guruji. This is really interesting. It gets very light at the end. आपको कल बताया था कि गुरुजी का एक ट्रीटमेंट रूम था पीछे। तो एक दिन हम 4 जने थे उस दिन। मेरे डैड नहीं थे, मी, माय वाइफ, माय मदर एंड माय मदर इन लॉ। हम चारों को गुरुजी वो पीछे कमरे में ले गए। क्या तो मैं अपनी तीसरी आंख पे खाना हूँ।
एंड ही जस्ट अपनी एक आंख को ना ऐसे रेस करके जैसे कि जगह बना के ना, ही टोल्ड अस टू लुक इनटू इट। हम सब ने कहा वाह गुरुजी अति सुंदर एंड स्टफ लाइक दैट, एंड वी केम आउट। On when we left the mandir, I was the first to own up. I said, यार look guys, देखो सच सच बताऊं, मुझे तो यार नजर आई नहीं, लेकिन कौन पापी बने, इसलिए मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि बहुत सुंदर, मुझे तो नजर नहीं आई थी इसलिए। शैली माय वाइफ वाज नेक्स्ट टू फॉलो, कहती है वरुण तुम सच बोल रहे हो तो झूठ तो मैं भी नहीं बोलूंगी, नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर भी कहती है बच्चों नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा कपूर आंटी, गुरुजी हमेशा उन्हें कहते थे तो मेरी बहन है, शी सेड के वरुण कि मैंने वो देखी और वो इतनी सुंदर आंख, इन दोनों आंखों के बीच में समझो यहाँ पे जहाँ दोनों आंख की आईब्रोज मीट करती है ना, इसके बीच में इट वाज नॉट वर्टिकल एज कई फोटोज में दिखाते हैं ना कि वर्टिकल आंख हो, वर्टिकल नहीं थी, इसी शेप की, मतलब हॉरिजॉन्टली आंख थी, लेकिन इतनी सुंदर आंख कि देखो तो बस डूब जाओ उसके अंदर वाली बात है, ऐसी फीलिंग। तो कहने का भाव ये था कि 4 जनों को दिखाया गया, लेकिन जिसको दिखानी थी बस वही देख पाया, बाकियों को नहीं दिखाई थी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, अब कुछ आपको बताना चाहूंगा कि हम जब मंदिर जाते हैं या सत्संग पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो लाइन में आने का क्या भाव है, और वाई गुरुजी यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी कि जदों भी मेरे को लांदे हो, भावें मत्था टेकन आंदे हो, भावें आज्ञा लैन आंदे हो, भावें लंगर वास्ते जांदे हो, लाइन में जाया करो, क्योंकि इत्थे ना 2 लाइनां होंदियां। देवता भी मेरे कोले मंगल आंदे ने, वो तुहानू दिसदे नहीं है। जदों तुसी लाइन क्रॉस करदे हो ते उन्हां उत्ते चल के आंदे हो, यू ट्रैम्पल देम विद योर फीट, सो इट इज you need to come in a single line when you come to me. So that was it. I know it seemed very far-fetched at that point of time, but now I know for sure, मतलब sorry हिंदी again, उस टाइम ये शायद बहुत अद्भुत सी बात लगी होगी, पर आज मुझे पता है कि वो जो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमेशा एक और बात कहते थे कि वरुण ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने ते 10 दिन, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं ना। सो व्हाटएवर गुरुजी सेड इवन इन जेस्ट, आई मीन किसी के साथ कजोल करके हंसी मजाक में भी कहा, वो पत्थर की लकीर हो गई। अगर उन्होंने किसी को ब्लेस किया तो ये निश्चित है वो उसके साथ होएगा ही होएगा। टाइम का जो बांधा है, जो टाइम की रेलेवेंस है, वो सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो सत्य होना ही होना है। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, मेरे ख्याल अब काफी खिंच गया और लोग भी सत्संग करना चाहेंगे, तो कल बात करेंगे नेक्स्ट वो। आज के लिए बस ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जब तक हम गुरुजी के पास गए नहीं थे तो बस ओम नमः शिवाय तक ही हमने सुना था, और जो नेक्स्ट लाइन थी वो कभी नहीं सुनी थी। ओम नमः शिवाय बोला करते थे। तो गुरुजी यूज्ड टू टेल अस कि मेरे मुंडे को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन बोल। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, ही वुड से मैं शिव दा प्यों आओ, कमले ने तो ब्याह कराया। व्हेन ही गेव द मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तो हमेशा कहते थे कि मेरे मुंडे को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन बोल। सो दैट इज द कंप्लीट महा मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। डिफिकल्टीज आई सब कुछ के बारे में, ठीक है जी। गुरुजी जय गुरु जी। गुरुजी को हम सब जलंधर वाले गुरुजी के नाम से ही बुलाते थे, मतलब जब हमने जाना तो उनकी आइडेंटिटी थी जलंधर वाले गुरुजी, और हम सबको उनका असल नाम नहीं पता था। इट सो हैपेंड के ये बड़े मंदिर की जो जगह है 1.2 एकड़ की जगह है, अरिहंत वाले मिस्टर जैन से ये लिया गया था। एंड इसकी डील मेरे ब्रदर ने कराई थी, मेरे कजन ने कराई थी।
एंड रजिस्ट्री में विटनेस के तौर पे उसी ने साइन किए थे। तब निर्मल सिंह है, उससे पहले हमें किसी को नहीं पता था, ना किसी की हिम्मत होती थी गुरुजी से पूछने की कि आपका नाम क्या है। तो ये जब जगह ली गई तो पहले तो दूर दूर तक बियाबान इलाका था, कोई ड्वेलिंग नहीं थी आसपास। अरावली का ये पोर्शन है, तो ब्लास्ट करके डायनामाइट से हमने जमीन को समतल कराया। हमने इन द सेंस के गुरुजी ये लेके जलंधर चले गए थे और पीछे इसका मेन श्रेय, मेन काम का जिम्मा रघुवीर सिंह अंकल को दे गए थे। तो हम जो दिल्ली की 4-5-6 फैमिलीज थी, वो गुरुजी के रघुवीर अंकल के साथ मिलके ऑन एट टाइम्स असिस्ट करते थे। ही वॉज देयर ऑफ कोर्स फुल टाइम, उन्होंने खड़े होके सारा कुछ कराया। एंड हम आए, व्हेन आई से मैं अपने बारे में जब बात करूं तो संडेज के संडे कार सेवा, नॉट KAR बट CAR, कार सेवा इन द सेंस कि हम लोगों ने वहां जाके पिकनिक मनानी। अबाउट 5 families, there was Baba, the old one, then there was Chima uncle. Anyways, probably these are just names and only the old Sangat would be knowing them. Dr. Ravi Khan, ये सब हमने ना we used to have a rollicking time at that point of time. बाबा ने स्क्वाश का काम था उसका, बेसिकली स्क्वाशेस लेके आना। somebody used to get पूरी डिकेंटर भर के लस्सी, that was Ravi Khan. और वहाँ पे जो इतनी भी मजदूर वगैरह सेवा कर रहे होते थे, we used to get लंगर for all of them. And it was a potluck sort of a thing. We used to decide कि कोई दाल लाएगा, कोई सब्जी लाएगा। And then there was this कोने में ही जहाँ पे अब पेट्रोल पंप है, जो मंदिर जाते हैं के रास्ते में जो कोने में पड़ता है, उसके साथ एक ढाबा था, वहां से रोटियां बना के जाते थे। सो एनीवेज, जब ये ब्लास्ट कराया गया डायनामाइट से, उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि सांप ही सांप वहां से में आ गए काफी। तो गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया, तो गुरुजी ने कोई उपाय बताया, उससे ये काम ठीक हुआ। अब ये इतना रॉकी एरिया है, यहाँ पे पानी, आपको पता है बिना पानी के कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पानी का ढूंढना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज देयर वाज नो कनेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम से द MCD और वाटर वर्क्स, व्हाटएवर दे माइट से। सो ग्राउंड लेवल से ही जो सबमर्सिबल पंप, आई मीन अंडरग्राउंड वाटर से ही काम चलाना था। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रघुवीर अंकल के वरुण गुरुजी ने क्या है कि वरुण ने लेके ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डाउजर। डाउजर इज क्या होता है कि एक पेंडुलम टाइप की चीज होती है, और उसको वो बेसिकली लटका के ना उसकी किस तरह रोटेट कर रहे हैं, मतलब समथिंग टू डू विद इट हेल्प्स देम डिटेक्ट वाटर। इट्स अ वेरी साइंस बेस्ड थिंग। एंड यही आज्ञा मिली कि जी एक मालवीय नगर से उस डाउजर को उठाना है और लेके आना है बड़े मंदिर, तो वहां पानी ढूंढेगा, बिकॉज पानी के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं पाएगी। सर्दियों के दिन थे, आई गेस, आई बिलीव दिसंबर ओनली, एंड आई पिक दिस पर्सन अप एंड देन रघुवीर अंकल को मेरे ख्याल एम्पायर स्टेट से मैंने लिया। और हम जब मंदिर गए, बड़े मंदिर, तो ऑलमोस्ट सुबह से शाम वो एक कोने से शुरू होता, दूसरे कोने जाता, अपना वो पेंडुलम टाइप की चीज लटकाते, और खुली जगह थी। और सर्दियों के दिन में सूरज भी जिस दिन ना निकला हो, तो आप समझ सकते हो कि खुली जगह में कितनी ठंड होती है। सुबह से लेके शाम होगी और कुछ खाया पिया भी नहीं था, भूख के मारे हुए। तो शाम को ही जस्ट थ्रू इन द टॉवल के जी सॉरी यहाँ पे पानी नहीं है। तो मैंने कहा यार सुबह से इसने हमारा टाइम खराब कर दिया और अब ये बोल रहा है पानी नहीं है। एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी पानी तो नहीं लभ्या होते। तो गुरुजी ने कहा कि कोने तो नक दी सीध उत्ते इन्ने फुट सीधा चलो, उत्थे फिर जाके 200 फुट जदों खोदोगे तो पानी लभूगा।
500 फुट खोदो, मैं गंगा ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। And as per his words, that is what happened when we went ahead and we dug that thing. 200 फुट पे पानी आया, थोड़ा खारा था, और 300, 400, 500, whatever. I mean, I'm not exactly remembering the number. I believe it was 540. वहाँ पे मीठा पानी आया। तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे ये चमत्कार, ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाने, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अब बात करते हैं द मेन स्ट्रक्चर की। इसके ऊपर भी विवाद ऐसे है कि मेरी रिक्वेस्ट संगत जी आप सबसे ये है कि चाहे वो पुरानी संगत हो या नई संगत हो, जो भी सत्संग शेयर करे, ट्रू सत्संग शेयर करें। आई मीन, और कोई देखे ना देखे, गुरुजी तो देख ही रहे हैं। मतलब जस्ट for the sake of doing a satsang, there is no point. I was so hurt. I read somewhere and it was quite there in the internet as well. किसी ने claim किया, किसी Mr. Jain ने कि जी he was the one who designed the बड़ा मंदिर। That is just a fabricated lie. I mean, there's a big satsang about. We cannot trivialize this. इतना बड़ा सत्संग था जब ये मंदिर बना था। विप्पी भारद्वाज, as you would, the old संगत of course would be knowing, we always used to call him Guruji's shadow. जहाँ गुरुजी ने जाना उसने जरूर साथ होना। And his family, I used to call them the first family of Guruji, because when we started going to Guruji, I believe just a couple of families that I can see right now who were there before us, in the sense one was of course Vippy's, the Bhardwaj family, and then I guess Bambi and Sati. I believe यही दो families थी जो हमसे पहले शायद जाते थे। तो anyways, I know for a fact because we were very much there कि ये architect Vippy's father is a very famous architect. उनकी एक firm है Bhardwaj and Bhardwaj. In fact, एक पिक्चर थी कभी कभी जिसमें अमिताभ बच्चन था, उसका जो ऑफिस दिखाते हैं वो इन्हीं का ऑफिस था, जीके डिफेंस कॉलोनी में। एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट। इनफैक्ट गुरुजी हैड गिवन हिम, हिज फादर, विप्पी's फादर, स्पेसिफिकेशंस टू मेक द मंदिर के भी आर्किटेक्ट को, कि भी उनको किस तरीके का मंदिर चाहिए। सो आई स्टिल रिमेम्बर विप्पी's फादर very vehemently saying कि गुरुजी this won't work, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ डिजाइन ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ बनाना है, I don't give it more than 3 months at the most, because ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ कह रहे हो, जो मंदिर का जो अंदर इनर हॉल है जो है, उसमें आप देखोगे तो बीच में कहीं पे भी कोई पिलर नहीं है, कोई सपोर्ट है, कोई लोड बेयरिंग वॉल नहीं है। देखते हैं ना आप, बस एक गोलाई में ही वॉल्स हैं, बीच में कुछ नहीं है, और ऊपर जो शिवलिंग है वो बहुत भारी है। तो उस टाइम पे भी विप्पी के फादर ने कहा कि गुरुजी ये तो इतना भारी शिवलिंग है और सपोर्ट कोई है नहीं, ये 3 महीने के अंदर अंदर ये ढांचा गिर जाएगा। सो व्हाट इज इट नाउ, 23 years and counting, बट गुरुजी ने कहा कि नहीं कमले, तू बस अपना काम कर, मैं अपना काम कराना। एंड दैट इज हाउ इट केम इनटू बीइंग। एंड आई मीन, somebody just claiming कि जी उसने बनाया था, not done. I mean, this is really not done. Anyways, अब बताता हूँ, जैसे गुरुजी उन दिनों जलंधर हुआ करते थे जब ये फिनिशिंग टचेस हो रही थी, और वो शिव जी की जो मूर्ति है बाहर, वो रखने की बात हो रही थी, और वो भी बड़ी भारी थी। तो जेसीबी ने कई बार, 1-2 बार कोशिश की कि उसको उठा के रख सके, बट समहाउ इट फेल्ड, द अटेम्प्ट फेल्ड, और गुरुजी तक बात पहुंचाई गई कि गुरुजी दिक्कत आ रही है और वो रखने वास्ते। तो गुरुजी ने क्या टाइम एक निश्चित किया, भाई फला दिन इन्ने बजे ना तुसी रखना, फिर कोशिश करना, मैं इत्थों दी हाथ ला दियांगा। एंड बिलीव यू मी, वो उसी टाइम पे जब ये किया गया तो जेसीबी ने ऐसे उसे उठाया जैसे मक्खन की तरह उठाया उसे, और जब वो रखा गया तो शिव जी के मुंह से गुरुजी की आवाज, जो कि जलंधर में थे, आया, आराम नाल रखो। सो ऐसी सारी चीजें होती थी उस टाइम पे, और बड़ी अचंभे वाली बातें होती थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टाइम व्हेन ही वाज इन ग्रेटर कैलाश,
I told you why I went to him for the very first time, because I was ailing. मेरे को asthma और bronchitis की शिकायत थी. What we did not tell him at that point of time was that though I was married in the year 1992, by the time that we gone to him, in those 3 years, my wife Shelly had 2 miscarriages. And we used to consult Shelly's Thai, who's a very eminent gynecologist, Dr. Sheila Mehra in Moolchand Hospital. So after the second miscarriage, so to say, she counseled us ke Varun, Shelly, देखो, Shelly की uterus is very weak. She will not be able to carry the pregnancy through. So don't even give it a try. It is better you go in for adoption only. So we were very shattered and shaken at that point of time, because everybody wants to have his own progeny. अपनी family खुद चाहता है, बच्चे चाहता है. हमने गुरुजी को नहीं बताया कभी कि भाई क्या बात है. तो गुरुजी out of his own free will, he gave us 2 daughters back to back. And the reason I say that he gave me these daughters is because when she was expecting my elder child, Shelly was expecting my elder child, तो उसको बीच-बीच में बुखार होना, कोई दवाई ले नहीं सकती थी. वैसे ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिलीवरी थी, बिकॉज 2 मिसकैरेजेस पहले हो चुके थे. तो गुरुजी अपने उपाय बताते थे कि भी हरी मिर्च बांध लेना उंगली पे एंड स्टफ लाइक दैट, एंड उससे ना बुखार ठीक हो जाना. इसका खुलासा गुरुजी ने दिया जब मेरे दोनों बच्चे हो गए थे. एक बार एक संगत के, ये उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज एवरीबडी हैज हिज ओन privacy sort of a thing, के फला दे किस्मत विच बच्चे दा योग नहीं सीगा, अपना तेवा कटा के वेख ले ते बच्चा नहीं सीगा, वो मैं उन्हें दिता है. He was telling me this about this gentleman, and we knew for a fact कि उसकी wife did not have the tubes, the fallopian tubules. So as per science, जिसके fallopian tubules ना हो वो लेडी कभी कंसीव नहीं कर सकती, पीरियड. मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं इस पे डिबेट करने का. तो जिसके बच्चादानी ना हो, अगर इफ आई वर टू यूज दैट वर्ड, और उसका भी बच्चा गुरुजी ने उसको दे दिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. बिकॉज नाउ व्हेन ही वाज सेइंग दिस टू मी, दो मैंने कभी तेवा बनवा के नहीं देखा, लेकिन अगर मैं भी शायद तेवा बनवाऊं तो उसमें बच्चों का योग नहीं था. विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है. जो नहीं लिखा गया, बिकॉज उन्होंने ही लिखना है. कल मैंने आपको जब वो बताया कि भी मैं फोन के बारे में जब बताया उनको, मेरा फोन वाला सत्संग बताया कि यार मैं इनको बता रहा हूँ, क्या ये काट के लिख नहीं सकते थे दोबारा. मैं ये भूल गया कि वो जिंदगियां लिखते हैं, वो तकदीरें लिखते हैं, फोन नंबर लिख के क्या मिलना था उन्हें. सो एनीवेज, दिस वाज व्हाट इट वाज. एंड द रीजन, मैं जब बाकियों के, खासकर पुरानी संगत के भी सत्संग सुनता हूँ, मैं उनमें इतना भाव देखता हूँ. आई मीन दे रियली डिजर्व टू बी विद गुरुजी. बट व्हेन आई सी माई सेल्फ, आई जस्ट कांट थिंक व्हाई, बिकॉज आई वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट. जिसे कहते हैं ना कि सर फिरा जैसे बंदा होता है. I guess I was a test case for Guruji, and believe me, हम क्यों नहीं मान पाए उन्हें रब, उसके पीछे भी ये रीजन है कि वो हमें कहाँ नहीं लेके गए. He used to take us for movies, to movie halls, to cinema, to malls, hotels, restaurants, market. He was just like an elder to me. I mean, that's what we did. At a later date, probably. अभी वो टाइम नहीं आया. मैं आगे कुछ सत्संगों में बताऊंगा how it all started, how we started going out with him on a regular basis, of course with his will. But for now, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं कि मंदिर के बारे में जो बता रहा था मैं वहीं पे बात खत्म करते हैं. कल जलंधर के बारे में बात करेंगे, जब गुरुजी ने हमें सबसे पहले बाहर जलंधर बुलाया. जय गुरुजी, थैंक यू. कुछ पुराने सत्संग जीके के टाइम के ही करता हूँ. श्रद्धा एक्सप्रेस
ऐसे था कि जब गुरुजी ग्रेटर कैलाश में थे तो देयर वाज दिस मिडिल एज कपल आया करते थे गुरुजी के पास, और वो किसी को बता के नहीं आते थे कि ऐसे ऐसे हम गुरुजी के जा रहे हैं। कई लोगों के होते हैं कंपल्शंस होती हैं, कुछ कंपल्शंस होती हैं कि वो लोगों को नहीं बताते कि भाई कहाँ जा रहे हैं, व्हाटएवर द केस माइट हैव बीन, बट somehow वो किसी को बता के नहीं आते थे। उन्हीं दिनों में जैसे वो बताते हैं, जैसे सत्संग जो शेयर हुआ था उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात थी जो अब उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि उन लोगों का, उन दोनों का, दंपति का प्रोग्राम बन गया माता वैष्णो देवी जाने का। तो वो जिस दिन जाना था उन्होंने, तो उस दिन में एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365, आप कभी भी जा सकते थे। तो दिन में वो मत्था टेकने आए कि भाई इतने बड़े दर में जा रहे हैं तो गुरुओं की ब्लेसिंग्स लेके जाएं। वहां से वो जब स्टेशन जा रहे थे तो ट्रैफिक जैम में कहीं फंस गए। ट्रेन से जाना था उन्होंने, तो ट्रेन निकल चुकी थी, लेट हो गए, ट्रेन निकल चुकी थी। और टू मेक मैटर्स वर्स, वो एक जत्था मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल, 40 कुछ जने का प्रोग्राम बना हुआ था समझो, वो उस जत्थे में जा रहे थे। एंड एज लक कुड हैव इट के दे वर द सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजर्स, इन द सेंस के टिकट बुकिंग उन्होंने ही कराई हुई थी सबकी। और इस कारण जब वो वहां पहुंचे तो वो कोई भी बोर्ड नहीं कर पाया था, बिकॉज दे वर ऑल वेटिंग फॉर हिम एंड द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो सबने उनको बड़ा बुरा भला कहा कि भाई आपके चक्कर में हमारी ट्रेन मिस हो गई, तो आप कहाँ रह गए थे। तो दे हैड टू टेल देम कि भी ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हम उनके पास गए थे उनकी ब्लेसिंग्स लेने, तो वहां से चल रहे थे तो ट्रैफिक जैम में फंस गए और हम लेट हो गए। तो सब ने वहां पे जो उनके साथ जाने वाले थे, इन सब ने गुरुजी को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि देखो तुम पढ़े लिखे होके भी भगवे कपड़ों के चक्रों में आ जाते हैं। भगवे कपड़े इन द सेंस के दैट इज द सेटली रोब, मतलब जो नॉर्मली गुरु पहनते हैं गेरू कलर के कपड़े, उसके बारे में बोल रहे थे। देखो भगवे रंग के कपड़े के चक्कर में आ जाते हो, और देखो माता रानी ने इतना बड़ा तिरस्कार किया है कि आप किन चक्रों में पड़ जाते हो। उनकी वजह से, तुम्हारे गुरु की वजह से आज माता रानी ने हमें आने नहीं दिया अपने पास। तो ये सब वो सुन रहे थे, तो कहते हैं तभी एक टीटी वहां से आया, सिद्धार्थ टीटी, बड़ी दाढ़ी वाला। उसने कहा जी क्या बात है, क्यों रौला पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, ये देखो इतने पढ़ लिख के भी गुरुओं के चक्कर में आ गए। और एवरीबडी टोल्ड देम अपना कि भाई किस तरह उनकी ट्रेन मिस हो गई। तो उसने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ना एक नई ट्रेन चली है, श्रद्धा एक्सप्रेस, कटरे के लिए, जम्मू के लिए, शायद उसमें आपको टिकट मिल जाए, जगह मिल जाए, जाओ वहां जाके ट्राई करो। तो वहां पे वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे गए तो देखते हैं कि वहां ट्रेन भी खड़ी थी और एक टीटी खड़ा था वहां साइड में। तो उन्होंने पूछा कि जी ये ट्रेन में जगह मिल जाएगी, कहते ट्रेन सारी खाली है। तो उन्होंने को लगा कि शायद कोई नई ट्रेन चली है और जिसके बारे में ना प्रोपेगेंडा नहीं हो पाया, प्रमोशन नहीं हो पाई, को लोगों को पता नहीं है कि भी ये ट्रेन चली है, इसलिए बुकिंग नहीं होगी। हमारी किस्मत अच्छी है कि खाली है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट वहां पे जो भी पैसे देके बुकिंग कराई और वो जम्मू चले गए। अब जम्मू से जब वो वैष्णो देवी गए, अच्छे दर्शन हुए उनके हिसाब से। वहां से जब वो वापस आ रहे थे, जम्मू आए, तो उन्होंने कहा यार ये नई ट्रेन बड़ी अच्छी थी, खुले डुल्ले होके आए थे हम, क्यों ना अपनी टिकट कैंसिल करके इसी में चलते हैं वापस। दे अप्रोच द इंक्वायरी पीपल कि भाई ऐसे ऐसे हमारी ये टिकट है, इसको कैंसिल करके श्रद्धा एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दे। तो उसने बोला वो कौन सी ट्रेन है। तो उन्होंने उस पर हंसे, कह के जी आपके पास भी सर्कुलर नहीं है, मतलब आपको भी नहीं पता कि ऐसी ट्रेन चली हुई है। उन्होंने अपना पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हमारी दिल्ली से ट्रेन मिस हो गई थी और ये श्रद्धा एक्सप्रेस के अंदर हम आए हैं। तो उस नाम अपना रिकॉर्ड चेक किया, कहता जी ऐसे इस नाम की तो ना कोई ट्रेन है, ना कभी आई है यहाँ पे।
तो वो सब भौचक्के से रह गए, और वो जब वापस आए तो सब के सब सीधा स्टेशन से गुरुजी के पास आए, माफी मांगी, और गुरुजी की जब कोई तारीफ करता था ना तो गुरुजी यूज्ड टू ब्लश लाइक अ बेबी, यूज्ड टू गो पिंक, एंड दैट इज व्हाट ही डिड। एंड गुरुजी का बस एक ही उनको जवाब था कि ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। This by just saying this he swept it under the carpet as if he had no big deal. And this is not the only time that he created a train, so to say. General Malhotra पुरानी संगत के हैं, सबने आप लोगों ने उनका सत्संग भी सुना होगा। Not once or twice, thrice he created a train for him in the dead of the night. As I told you yesterday, Guruji कहते थे कि वरन आपा कुछ भी कर सकते हैं, and that true to his word, he can do anything and everything. एक और छोटा सा सत्संग जीके के टाइम का ही है ये। These were the satsangs that really what do I say, मतलब उस टाइम पे they seemed so unrealistic. I mean, how can it be? Thinking brain कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। Anyways, there was this as I told you कि वहाँ ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी उन दिनों। एक यंग 24, 25, 26 साल की एक लड़की वहाँ पे साइड में ना सुबक रही होती है, मतलब धीरे धीरे रोती रहती थी। तो we used to always look at her, but somehow we could never ask her what the problem was and why she been sobbing silently all through. Then one day Guruji just called her, ਇੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ on her stomach, so to say, he just drew a semicircle, चल सीधा कर देता है। We couldn't get anything. I mean, what is this? What's going on? The next day she came in such a cheerful mood and she was so happy and she was laughing around. So हमने हिम्मत करके पूछा कि क्या था, मतलब आप रोते क्यों रहते थे और अब इतने खुश क्यों? She told me that she had a very difficult pregnancy. She was going through a very difficult pregnancy. We could make out that she was pregnant, and her child, the unborn baby as such, was inverted. And to make the matters worse, her os, there's this thing जिसे opening कहते हैं womb की, जहाँ से बच्चा निकलता है, that was constricted. मतलब वो बहुत पतला था और डॉक्टर्स ने बोला हुआ था because of the position of the child inverted है, forceps की जरूरत पड़ेगी और उससे क्या होएगा कि या तो बच्चा या माँ को खतरा आ सकता है at the time of delivery. When Guruji drew that semicircle on her stomach and she went in for an ultrasound the very next day, and even the doctors were surprised that ये एकदम से किस तरह 180 degree turn हो गया। I mean, बच्चा उल्टे से सीधा कैसे हो गया? So that was another satsang that I wanted to share. The reason I've been sharing these things is that somehow over a period of time I see that they are going into oblivion, because with Guruji you get so many satsangs of everybody going around everywhere. जो पुराने सत्संग है ना, because 25 साल तक तो मुंह बंद रखे थे हम इस बारे में, तो अब शेयर कर रहे हैं कि ये चीजें होती थी। Guruji, as Anita had rightly pointed out, used to say कि चमत्कार दो नमस्कार नहीं करीदा, पर की करिए लोकी रब नहीं मनदे, रब नू नहीं मनदे ते करना पैंदा। So that was his way of going about it. And then as I told you that he had a very rollicking sense of humor. So just to give a few pointers, he would name people like IES का full acronym जो वो गुरुजी के हिसाब से होता था, I am sorry. सब लोग I am sorry कहते हैं, I am sorry थोड़ा काम नहीं कर सकता, या इनविजिबल आफ्टर सनसेट कहते सीखे कि शामी किसी को मिलते ही नहीं, पता नहीं कौन है ना को काम खोल के ले जाएगा या काम करा लेगा। MBBS सॉरी LLB ਨੂੰ ਗੁਰੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੜੋ ਲੜੋ ਭਾਈਓ, ਲੜੋ ਲੜੋ ਬਹਿਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। CPWD ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ cash paid work done. I mean, this is just a small thing that just to tell you guys that it was never
a heavy thing over there. I mean, it was never ever कि भाई धुनी रमा के बैठे हुए हैं. We used to be having so much fun with him. गुरुजी ने कहना कि वरन दिल्ली ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ. ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. किसी ने आना कि गुरुजी मेरा मकान नहीं खाली हो रहा था. गुरुजी ने नट है थोड़ी मैं कोई जादूगर हाँ. So गुरुजी was very frustrated at times. I mean गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन जो मैं देन आया वो कोई मैंने वो मंगता ही नहीं है. हर बंदे दुनियावी चीज़ा पीछे लगे हुआ है, me included. I mean why should I act that I am holier than thou? In fact अगर लिस्ट बनाई जाए तो शायद सबसे पीछे और सबसे I mean पुरानी संगत में जो हैं they are really blessed, no doubt about it. They deserve, most of them deserve to be with Guruji. But as I always claim, was a test case. I was the black sheep, so to say. And अगर वो नहीं मैंने बुलांदे तो मैं कदे नहीं पहुंच सकता सीगा. वो उन्हां दी मेरी सीगी कि उन्हां ने मैनू कट के बुलाया मेरे उत्ते अपनी करम बरसाई और इतना भला किया. अच्छा अभी मैं सत्संग किसी का सुन रहा था शुरू में जिसने किया and she just said something which really hurt me in the sense why do people say this कि भाई गुरुजी सबके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते. I mean this is absurd यार. I wanted to bring this at a later stage but just to tell you that when Guruji used to take us to hotels, to restaurants, we used to be having the langar on the very tables probably जिससे हम समार से पहले शायद non-veg even beef भी serve हुआ. I'm talking about the hotels like say Moria and Hyatt and the Radissons of the day. I mean what is this? गुरुजी हमेशा ना हमारे ना भ्रम तोड़ने ही आए थे. मतलब it is ritualism जिसे हम कहते हैं ना वो उसके बिल्कुल एंटाई थे गुरुजी. मतलब उसी को तोड़ने आए थे. अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुरुजी के जाने से पहले हम सबको आदत थी जोर की जयकारा बोलने की. बोलो शेरा वाली माता तेरी सदाई जय. आवाज नहीं आ रही जोर के बोलो. तो गुरुजी कहते से कंजरा रब कोई डोरा नहीं हैगा वो दिल दी आवाज सब तो पहले सुनता है. बेसिकली गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ भी इस तरह होना चाहिए कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ नहीं हिलने चाहिए, अंदर ही अंदर चलना चाहिए. लोगों वास्ते नहीं अपने वास्ते तुसी करना है. So just to bring this into proper perspective and then secondly some people today also say कि जी हमारे घर संगत है या सत्संग है तो हम तो गुरुजी को जो भोग लगाते हैं प्रचार हम तो पहले चखते भी नहीं है. How funny. I mean how did this come about? सबूरी ने भी जो बेर चक्के दिए थे मीठे थे जो बढ़िया थे वही राम जी को दिए. तो आपका तो हक बनता है कि first you have to taste it and see that it is fit for consumption by your God. What is stopping you? I mean why this thing? ये सारी चीजें कहाँ से आई कुछ नहीं समझ में आया. जो जिसके मन में आया सब बोलते चले गए. I mean there is no basis for it. When you have to go on the path of Guruji, you have to forget whatever you've learned throughout your years. कि भाई रब किस तरह सीगा की अंदर होंदा सीगा घंटे बजदे सीगे जोर नाल जयकारा होंदा सीगा सब कुछ भूलना पड़ेगा. You have to start with a fresh slate. जिस तरह गुरुजी मैं आपको बता रहा था जब तीसरी आंख के बारे में बोला कि दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टली आंख थी तो गुरुजी ऑल्सो सेड कि वरन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ this is just an artist's imagination. ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. He once told me ਕਿ Jesus Christ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ. So what you see right now as being projected as say Jesus Christ is not what he looks like actually. So just basically sharing, I guess there was nothing related to what I was talking about. Just a few random thoughts that about 1995. Now talking yesterday, I don't know how could I have said that I would be sharing a satsang on Shiv Puran because that is my better knower in the sense Guruji कहते थे कि शिव पुराण पढ़िया करो रोज ज़्यादा नहीं थे एक पेज पढ़िया करो and 5 साल which I have not yet come to complete it. With very enthusiasm, I start, go on for about a month, 2 months, and then I forget all about it. So my satsang is that I have, even after 25 years, I have not been able to finish the Shiv Puran.
even once. Yes, about Shiv, this is what Guruji told me. Guruji ने क्या किया वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा होंदा ना, you understand ना, माचिस की तीली के ऊपर जो बर्निंग पार्ट जो बुरादा होता है, इन्ना कुछ सब दे अंदर होंदा है. So I take it वो आत्मा के बारे में बोल रहे थे. शिव और शव में बस फर्क यही है, जब वो आत्मा निकल जाती है तो वो शव हो जाता है. हर हर महादेव का जो हमने सुना होगा, हर हर महादेव की जब ललकार वॉर के टाइम होती थी पहले, इसका मतलब क्या था? आप हिंदी में ब्रेक डाउन करो तो जो गुरुजी ने बोला वही है. हर हर महादेव, हम सब महादेव, हम सब शिव का अंश हैं. कैसे अंश हुए? होम्योपैथिक मेडिसिन में टाइट्रेशन जो होती है, आप 1 ड्रॉप से 10,000 ड्रॉप, 1 ड्रॉप बड़े से अगर आप घोल में मिलाओ और उसके बाद 10,000 शीशियां भी उससे बनाओ तो उस 1 ड्रॉप का अंश उस सब में गिना जाता है. तो वही हम सब में है, क्योंकि हम सब शिव हैं, हम सब में शिव का वो अंश है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ. वो ही एक एक अंश करके हम सब शिव के ही वंशज हैं. तो गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि हर सबके अंदर शिव है. एनीवेज, बिकमिंग वेरी हैवी दिस वे, कभी गुरुजी के साथ मेरे ज्यादातर हंसी ठट्टे वाले सत्संग है. नेवर वेरी हैवी, एंड इन फैक्ट आई एम द लास्ट पर्सन हु शुड बी गिविंग अ sermon because I have never seen Guruji give a sermon. ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. As Guruji always used to say कि you don't need a medium or a mediator to connect to me. In fact, somebody yesterday was saying कि भाई pray for XYZ because he wasn't good, he wasn't doing too well or whatever. I would just like to share one more satsang on this part. There was this time when somebody said कि Guruji फला बंदा कह रहे ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਗੁਰੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ. ਬਈ you don't need a medium or a mediator. You have to have that one-to-one connection. And the भ्रम हम सबको यही कह है कि connection हमने जोड़ना है. That is also a bit out of place. Connection जोड़ेंगे वही. You have to be at the right place at the right time. It's not meaning that you need to go somewhere. You just think about him. And when he makes that connection, it is magical. We don't even have the wherewithal to make that connection. It is he, with his will, that connection is made. Coming back to dreams, as I told you, कि गुरुजी को मैं अपने घर का बड़ा ही मानता था. मतलब he was like, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता वाला ही हिसाब था उनके साथ. So I used to get very, मेरे सबसे बड़ा सत्संग in times to come जो मैं बताऊंगा because it is too early right now, was the one on my jealousy, in which I will tell you that we all claim that we've got so much from Guruji. I, for one, can claim that I gave something to Guruji. You may sound it to be very, very egoistic, but once you get to hear that satsang, you will understand what I am talking about when he asked me for something. Anyways, ये dreams की बात बता रहा था कि जब लोगों के बारे में लोगों से सुनते थे कि गुरुजी फला की ड्रीम में आए तो अच्छा भी लगता था, लेकिन एक तरह से जेलसी भी होती थी कि यार जैसे होता है ना, बच्चों की फितरत होती है, मेरे पापा सिर्फ मेरे ही हैं वाली बात है, उस तरीके की फीलिंग. You may call it jealousy, but I would more like call it possessiveness. Okay, whatever. Let's not debate on that. तो मैं क्या गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਤੇ ਗੁरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ. ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? So truly, I was like people who know about the Asterix comic. So उसके अंदर Obelix who fell into the magical potion called Ron when he was small. I guess I was like that. I never needed the dreams में जिस तरह गुरुजी का आना, because he had blessed me
infinitely so many times. I mean, that was not needed, but it was just out of jealousy or probably possessiveness. भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों है वाला हिसाब था, that I used to say this to him. So that also settles it. And secondly, this was also to make people comfortable that it's all right if you are not getting him in your teams, if he doesn't come in your teams. Feel blessed कि भाई गुरजीत जिस तरह कहते सी तू की चाहता है कि तेनों कैंसर होए तो मैं तेरी ड्रीम्स में चाहवा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक ही रहे. So I mean, don't invite him that way. He will come whenever he feels like, whenever he needs to come. There's this difference that you want him to come and when he is needed to come, and he will take care of that, rest assured. I guess that's it for today, because बहुत सारी संगत में अभी सत्संग करना है. Shiv Puran was a damn squib. I'm sorry if I said something, because I could not think of any satsang related to Shiv Puran. Jai Guru Ji. If you guys permit me, tomorrow again I will. सत्संग करते हैं. गुरु जी जब जयपुर गए थे, ये इसलिए मैं पुराने सत्संग कर रहा हूँ because with the passage of time I feel that people would forget all about this, because ये सत्संग तब के है जब हम जुड़े ही थे गुरुजी से 95 में, और ये 92 का सत्संग है जो हमें, जिनके साथ ये बीती थी, आप बीती हुई थी, जिनके साथ ये सत्संग हुए थे, उन्होंने उस टाइम पे शेयर किए थे. आप सब जानते होंगे जग्गी गरेवाल अंकल और रिम्पल गरेवाल दीदी, जिनके बारे में वो बिना पेट्रोल के जब गाड़ी चलाई थी गुरुजी ने जलंधर से लुधियाना तक, उनके बारे में लाइट ऑफ डिविनिटी में भी इनका सत्संग है. तो ये बेसिकली इनका सत्संग है. 1992 में मामा जी ब्रिगेड जनरल मोहन सिंह, ही वाज पोस्टेड इन जयपुर, और गुरुजी उनके पास, वो जयपुर कैंट में रहते थे, तो गुरुजी उनके पास गए कुछ दिनों के लिए. तो उन्होंने he was so happy, आसपास हर जगह बात फैला दी कि ऐसे ऐसे हमारे पास गुरुजी आए हुए हैं. तो आस पड़ोस के कई गांव वाले बसें भर के गुरुजी के पास आना उन्होंने, और गुरुजी ने, आप सब जानते हैं, जैसे वो गुरुजी कोई सरमन नहीं देते, कोई प्रीच नहीं करते थे, ना करते हैं, तो वो लोग आते जरूर, और गुरुजी ने with a shaking of his hand he would just basically bless them and he would not talk to them per se. तो उनको satisfaction नहीं मिल पाती थी जो आस पड़ोस से आते थे. लेकिन एक प्रथा होती है राजस्थान में, जो मुझे बाद में बताया गया, वो उन्होंने बताया कि लोग जब भी किसी रिलीजियस स्थान पे या किसी गुरु से मिलने जाते हैं अपने घरों को छोड़ के, तो एक मन्नत मांग के जाते हैं कि भाई घर से कि जी मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, ये हो जाए. तो वो काफियों के साथ जो सुनने में, जो उन्हें मुझे बताया गया कि काफी लोगों की मन्नतें गुरुजी के पास जाके पूरी हुई, और वो उमड़ के और लोग भी आने लगे गुरुजी के पास. इस दौरान एक बुजुर्ग, कोई गांव का सरपंच गुरुजी के पास आया और उसने कहा कि गुरुजी बाकी तो सब हम पे भगवान की काफी कृपा है, बस पानी की कमी है. रेगिस्तान एरिया है, इट्स अ डेजर्ट एरिया, जयपुर एंड आई मीन राजस्थान. सो यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो आपकी कृपा होए तो हमें यहाँ पानी भी आ जाए. तो गुरुजी ने उसको कोई उपाय बताया. उसने कहा कि जी इस साल सूखा बहुत है. उस सरपंच ने कहा, बुजुर्ग सा था, कि सूखा बहुत पड़ा है गुरुजी हमारे यहाँ, और सारे कुएं सूखे पड़े, तो काश उनमें पानी आ जाए. तो गुरुजी ने कोई उनको उपाय बताया और कहा कि भाई ऐसे ऐसे करो तो पानी आ जाएगा. लो एंड बिहोल्ड, जो गुरुजी ने बोला सत्य वचन वाली बात है, कुछ दिनों बाद वहां पानी आ गया. तो फिर आए गुरुजी के पास शुक्रिया अदा करने, थैंक्स करने. तो गुरुजी ने बोला कि पानी आ गया, कहते हाँ जी. तो गुरुजी कहते ये खारा है क्या. तो उन्होंने फिर कुछ उनको उपाय दिया कि गोल्ड डालो इसमें, ये मीठा होएगा, समथिंग ऑन दोज लाइंस. पर उन्होंने कहा साथ में कि ये पानी ना कभी बेचना मत, नहीं तो ये सारे कुएं सूख जाएंगे. तो बड़े खुश हुए और उन सब ने गुरुजी को एक तरह से इनवाइट किया कि पधारो मारो गांव.
पधारो मारो देश जो कहते हैं राजस्थानी लोग कि आप हमारे गांव आओ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा मैं आवांगा, और उनको एक दिन निश्चित कर दी कि भाई इस दिन मैं आऊंगा आपके यहाँ पे गांव में। तो उस गांव वाले सरपंच ने आसपास के गांव में डोंडी पिटवा दी और बोला कि भाई ऐसे ऐसे एक महापुरुष हमारे बीच आएंगे फलान तारीख को, तो आस पड़ोस के भी गांव वाले आके उनके दर्शन कर लें। जब गुरुजी वहां पे मामी जी के साथ वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि करीब 5 से 10 हजार बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ है। तो गुरुजी ने, आपको जैसे पता है कि जहां पे भी कोई सत्संग या संगत होती थी तो गुरुजी प्रसाद बांटते हैं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि जी प्रसाद का कोई बंदोबस्त किया है? तो वहां सिंपल लोग हैं, मतलब बल छल वाले लोग नहीं होते। तो उसने एक मिठाई का डब्बा गुरुजी के सामने रख दिया। तब मामी जी गुरुजी को देख के बोलती है, गुरुजी एक मिठाई के डब्बे से क्या होएगा, यहाँ तो 5,000 8,000 जनों की संगत है। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, मैं संभाल लांगा। एक तौलिया या एक कपड़ा मंगाया और उससे ना वो मिठाई का डब्बा ढक दिया। हाथ डाल के गुरुजी ने वो पूरी संगत को उसी डब्बे में से बरताया, हाथ डाल के तौलिए या कपड़े के नीचे, और बांटते गए वो मिठाई। सब जब संगत निबट गई और वहां से जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी ने मामी जी को कहा कि डब्बा संभाल ले। और वो डब्बा लेके जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो एक किसी खेत के कोने में गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई। वहां से देखा कि दूर से एक औरत इस खेतों में से भागते हुए आ रही है। सर पे उसके एक पंड, बेसिकली एक थैला टाइप का था। तो गुरुजी ने वो डब्बा जिसमें से प्रसाद दिया था वो उनको दिया। जब वो दौड़ के आई, हाथ से नमस्कार किया और चल पड़े। तो उनका मानना है कि क्या वो मान्यपूर्णा थी या जो भी थी, मतलब उनको गुरुजी ने वो किया। और ये चमत्कार ये था कि एक डब्बे से गुरुजी ने सबको निपटाया, सारी संगत को भर भर के उन्होंने प्रसाद बांटा। तो ये था उनका एक जयपुर का सत्संग। अब जयपुर का एक दूसरा सत्संग जो बहुत उस टाइम का हमारे लिए एक आई ओपनिंग सत्संग था। दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट फैमिली ऑफ जयपुर, राजमाता गायत्री देवी और उनके सुपुत्र कर्नल भवानी सिंह। कर्नल भवानी सिंह, अगर आपको याद हो तो वो सुल्तान ऑफ ब्रुनई के इंडियन एमिसरी थे, इंडिया में एम्बेसडर थे, उनकी स्पेशल पोस्ट थी। उस टाइम पे बिल गेट्स वाज नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सुल्तान ऑफ ब्रुनई वाज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और वो बड़े बीमार चल रहे थे कर्नल भवानी सिंह, एंड लिटरली 2 जनों के सहारा लेके कंधों पे जब उनको पता चला कि गुरुजी आए हुए हैं जलंधर, जयपुर, तो उनके दर्शन के लिए वो आए थे। कि किसी ने उन्हें बोला कि जी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो महापुरुष के पास जाइए, उनकी ब्लेसिंग होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी ने उनका सत्कार किया और वो गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मैं ना, मेरी सेहत मुझे अलाउ नहीं कर रही और मैं अपनी ना एम्बेसडरशिप या एमिसरी जो मैं हूँ सुल्तान ऑफ ब्रुनई का, ये सरेंडर कर दूंगा, मैं नहीं ये रखूंगा। तो गुरुजी ने कहा कर्नल साहब तुम ठीक हो जाओगे, ना छड़ना। एंड गुरुजी के वचन तो पत्थर की लकीर है, आप सबको पता है। वो ठीक हो गए और चंद दिनों बाद, कल 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, उन्होंने गुरुजी को संगत के साथ राजमहल, अपना जो मेन महल है, पैलेस है, उसमें इनवाइट किया। अब संगत क्या थी वहां गुरुजी के साथ, ये गरेवाल अंकल वगैरह थे, मतलब 4-5 जने ही थे। तो गुरुजी इन सबको लेके गए। उस राजमहल में एक कमरा था जो सिर्फ रॉयल्टी, जब कोई और दूसरे देश का राजा महाराजा जब कोई आता था तब उसी के लिए खुलता। लास्ट वो खुला था जब क्वीन विक्टोरिया शायद आई थी जयपुर, कई सालों, मतलब टेंस ऑफ इयर्स बैक, डेकेड्स बैक। तो वो राजमहल का वो कमरा खुलवाया गया, द बॉल रूम, द हॉल खुलवाया गया मतलब, और गुरुजी का वहां पे आदर सत्कार किया गया उनको। और उनके साथ जो संगत थी, जैसे जग्गी गरेवाल अंकल वगैरह, इन सबको सोने की थालों में लंगर परोसा गया।
लंगर करके गुरुजी ने कहा, गुरुजी को कर्नल भवानी सिंह ने कहा कि आओ गुरुजी मैं आपको एक टूर देता हूँ अपने पैलेस का। तो वो ऊपर छत पे ले गए उनको, गुरुजी को। तो वहां पे ना थोड़ी थोड़ी जगह दूर पे ना उन्होंने अपने छत पे बार बनाए हुए थे। तो गुरुजी ने कहा आ की है गया, तो कहती गुरुजी ये बार है गए। तो गुरुजी कहते ने कि तुसी फिर ला नहीं रहे, मतलब यू आरंट हैविंग एनीथिंग। सो कहते ने कि गुरुजी आज मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, जब मौसम जो चंगा होंदा ना ताई जरूर आंदा पीन दा। तो गुरुजी कहते तुसी अपना काम करो तो मैं अपना काम करना वा। गुरुजी ने उस टाइम पे बिना बादल के मेघ बरसाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब में भी पढ़ोगे तो एक रब ही है, बिन बादल मेघ जो बरसा सकते हैं वो सब रब के हाथ में ही है। तो दिस वाज वन ऑफ द मेनी टाइम्स व्हेन गुरुजी showed us that he can change the weather as well, and that is what he did. This also brings me to another point, that it is our belief and our basically the way we've been brought up that we think of say drinks as being taboo. I mean हम कहते हैं कि यार पीना अच्छी बात नहीं है. Point taken, maybe it is not good for us health wise, but just to pin it on Guruji के भी जी गुरुजी मना करते थे, that is all wrong. I mean there were times, I still remember Guruji had taken us to Suman uncle's party in SP Marg, the railway colony, and over there there was this bar also and drinks were being served there, and Guruji told me and Shelly, जाओ तुसी दो ला के आओ. So I mean, I know for a fact he never used to say no to all this. We are not debating whether it's good or bad. What I am just trying to say is that we don't need to add ourselves what Guruji meant or what Guruji said. We just have to stick to the basic facts. कि भी आ सेगा ते आ हैगा. Anyways, in the next few days, probably I will talk about my first life, second life, third life. That is my personal satsang, and I would definitely like to share it with you. But right now, I'm more inclined towards sharing satsangs which brought out the divinity in our Guru, because that is what brings in faith. So I've been trying to stick to that only. And I guess today also, as Vikramji was saying, Kiji, a lot many people are lined up for satsang probably today and tomorrow. So my satsangs can wait. Let us get to know other people's satsang as well. Jai Guruji, Shukran.